Hello everyone, am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. लीगल फ्रेमवर्क मैम जस्ट एकदम पहले स्लाइड में चले जाइए थोड़ा सा 1 मिनट. हाँ. A legal framework governing human relations. Okay. Now we will going to read human relationships in accord with the legal framework, that accord with the government guidelines. What are the rules, procedures are there which govern the human relations? We will going to start with this. This is absolutely a new chapter, a new concept, a new paper which I need to which ma'am has told me to start. So a lot of new things we will going to hear from you. What are the legal procedures to have a good relation human beings in under the framework of government? Okay. So ma'am, please go to the next slide. Now let us go with the introduction. Human relations are guided by laws to ensure fairness and equality. Okay, this is the law. What is the law? Always maintain the fairness and equality. फेयरनेस का मतलब होता है किसी को ठगो मत. Okay, don't cheat others. That is called the fairness. Always be fair. And then the equality is equal. आपको मालूम है कि we all are equal before law. Okay. Nobody, maybe of an IPS rank or IAS rank, uh, whatever the laws are been made, the same rules and regulation followed to IPS IAS officer and also to a means also to a normal person living in this earth. Okay, it in this particular paper we're also going to read the right, duties and obligations of employer and employees. What are the right concept, what are the right duties of an employer and employees, and according to that what are the obligations. Okay, obligations means what are the opposed part we're going to read. Promote industrial harmony and prevent exploitations. Okay, industrial harmony, relationships, industrial relationships is something different from the personal relationship. So how can we develop this industrial relationships and how to stop the exploitations, another form of cheatings. Okay, this we're going to read in the introductions part. Next, objectives of legal framework. First, protection employee right. This is the first objectives of a legal framework, to protect the responsibilities of an Indian citizen. We need to protect the employees right. Workers should be under safe. Okay, according to the new company policies, rules and regulations, all the employees working in any company, they are need to have facilities provided by the companies. Okay, only salary, that too minimum salary, that too not on a time, it will not going to happen. Because if somehow government get any complaint from the factories that this particular factory are not maintaining the proper fairness, or maintaining the not maintaining the what you can say, not maintaining the fairness among the employee, if they are practicing unfairness, they are exploiting employees, then maybe that factory being seized and the owner of the company may send to jail. So it is right, employees fight for the protections. Next is promotion industrial harmony. What is the industrial harmony? Peace. Then relationship. Only one industrial relationship, excuse me, that is should be the peaceful relationship between the employees. Employees should have a very good relationship with other employees, and that too under legal balance. Okay, that too under legal balance, the employee should maintain a peaceful relationship.
Third one is regulation of employment conditions. What are the employment condition? Fair wages means equal wages, good working environment, and reasonable working hours means not more than 9 hours or 10 hours. You cannot exceed or you cannot cross the limit. If you are giving the workers overtime, then you have to pay the overtime for that. Okay, 7 to 8 or 9 hours is minimum shift given to the employees. If the company abide this rules that the company is giving more than 9 to 11 hours, then the company bound to pay the extra wages to the employee. The next one is encouragement of collective bargaining. What is the meaning of them? Trade unions or business unions, they have a good legal bargainings with the factories owners. Okay, that employee should be paid on time. Employee should give the wages which they have to get according to the rules and regulations. And apart from that, the company has to maintain the peaceful relationship with other employees, with other department. These are few rules and regulations the company had to follow. Then prevention and resolution of dispute. What is the meaning of this? It provides legal mechanisms for conciliations, arbitrations, and adjudication. What is the meaning of the legal mechanism? What is this? Conciliations. Conciliations means you need to collide with every employees and work. At arbitrations means arbitrations with the senior employees. You have to make a proper collaborations and work. In spite of any dispute, if the company or if the employer find difficult to work in this type of environment, then may the employer can take any legal action against that company. Social justice. The another important is, if there is equitable work environment, then it's okay. If there is inequalities which may going to complain against legal justice. Compliance and accountability. Enforce employer and employees accountability under law to prevent misconduct. Any mishappen or any misconduct or any misbehavior with the employees, or rather with employer and employees both, they can lodge a complaint against each other. Okay, these are the following activities of legal framework. Let us recapitulate those points. Number one, protection of employee rights. Number two, promotion of industrial harmony. Number three, regulation of employment conditions. Number four, standardizations of practices. Encouragement of collective bargaining. Number six, prevention and resolutions of dispute. Number seven, promotion of social justice. And number eight, compliance and accountabilities. Next slide, ma'am. सर मेरे को 7 और 8 पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिए, वो हम जूम आउट हो गए थे. प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस मतलब अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके साथ कुछ अगर इनजस्टिस होता है, तो अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड सोशल जस्टिस. दूसरा है कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी. प्रॉपर तरीके से सैलरी और वेजेस आपको नहीं मिल रहा है, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क. यही दो पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट स्लाइड मैम. इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क. इंश्योर फेयरनेस, इक्वलिटी, एम्प्लॉय राइट, मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस. बट ये तो हो गया, सेम चीज है. नेक्स्ट स्लाइड मैम. मैम वो जो पहला वाला एक्सप्लेन किया था ना, वही यहीं पर दिया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. हाँ,
मेजर एरियाज कवर्ड बाय लेबर लॉ, कौन कौन से एक्ट है? देखिए ये समझाने की चीज नहीं है, अब आपको थोड़ा सा बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। वेजेस एक्ट 1948 क्या है, वेजेस एक्ट बोनस एक्ट 1965 क्या है, 1948 लेबर एक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या है, 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, व्हाट इज दिस, ग्रेजुएटी 1972 और पीएफ अकाउंट एक्ट 1952। दीज आर धारास, ये सब धाराएं हैं जिसके अंडर में आप केस या फाइल्स सूट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंपनी मुझे टाइमली वेज पेड नहीं कर रहा है, मुझे जो मिनिमम बैलेंस चाहिए वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय वेजेस कंपनसेशन एक्ट 1948 आप इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कौन से धारा में आता है? 1936। पेमेंट बोनस एक्ट कौन से एक्ट में आता है? 1965। ओके, सो दीज आर वर्किंग कंडीशंस। क्या होना चाहिए? वेजेस कंपनसेशन तो ये है। क्या क्या वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए? रेगुलेट आवर ऑफ वर्क, रेस्ट इंटरवल, सैनिटरी एंड सेफ्टी, ये वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनीज में काम करते हो, अगर आप कोई भी कंपनीज में काम करते हो, इफ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनीज, दिस मिनिमम things are need to be there in the company. What are the minimum things? Regulate hour of works, ठीक है, hour of work क्या रेगुलेट करना, रेस्ट इंटरवल, हाँ। तो क्या बता रहा था? व्हाट आई वाज टीचिंग यू, सॉरी देयर वाज अ फोन कॉल फ्रॉम माय रिलेटिव्स, दैट्स व्हाई आई हैड टू टेक द कॉल। अच्छा, वर्किंग कंडीशंस मैंने क्या बताया कि वर्किंग कंडीशंस ऐसा होना चाहिए कि आप मिनिमम ये सारा कुछ फैसिलिटीज होना चाहिए जहां आप काम कर रहे हो, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ सही है। आपका वर्किंग आवर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस है, 9 आवर्स के ज्यादा आप किसी को ज्यादा शिफ्ट नहीं करवा सकते हो। अगर उससे ज्यादा करवाते हो तो जितने घंटे आप करवाते हो उतना का वेज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज 400 रुपीज पर डे वेज एम्प्लॉइज का है, कोई भी वेज का 400 रुपया है पर डे। अगर आप 9 आवर्स का पर डे, तो आप अगर 1 घंटा या 2 घंटा ज्यादा करवाते हो उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर दैट। ओके, दीज आर द थिंग्स एंड ये हो गया आपका और प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, इंटरवल मतलब टिफिन ब्रेक्स अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब जो भी है वो टॉयलेट वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दीज आर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में हुआ था, ये 1948 में ये एक्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशंस दैट गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज and trade unions. Okay, govern the relationship between the employer, employees and trade union. Industry relationship कैसा होना चाहिए? Very neat and clean होना चाहिए। कोई भी अंदर मतलब ऐसा कोई dispute नहीं होना चाहिए। There shouldn't be any dispute between the employer
employees and trade unions. After all, each and every one have to look each other for the industrial development and growth. अगर ट्रेड यूनियन बदमाशी करेगा तो एम्प्लॉयर्स काम नहीं करेगा तो बोथ एम्प्लॉयज को भी दिक्कत है, एम्प्लॉयर को भी दिक्कत है, ट्रेड यूनियंस को भी प्रॉब्लम है. तो ट्रेड यूनियंस जो होते हैं, जो इनको समझना चाहिए कि हम किसी भी तरह से काम बंद नहीं कर सकते हैं. आप जानते हो टाटा स्टील प्लांट में जो इन ट्रेड यूनियन बना हुआ है, दे आर ऑल्सो हैविंग द ट्रेड यूनियंस. ओके, यूनियन होता है, कोई भी मसला होता है वेजेस के साथ, मतलब सॉरी एम्प्लॉइज के साथ कभी गलत ना हो, इसलिए ट्रेड यूनियन बना हुआ है. इनका मकसद यही है किसी भी एम्प्लॉइज के साथ नाइंसाफी ना, इक्वल राइट रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करना चाहिए. ठीक है, इसलिए ये ट्रेड यूनियन बनाया गया था. उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर क्या है? प्रोवाइड फाइनेंस, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन टू वर्कर. जैसे लॉस, क्या क्या लॉ बना था? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, पीएफ 1952, बेनिफिट्स एंड ग्रेचुइटी 1961 और ग्रेचुइटी एक्ट 1972. ये सब बना था, ये सब एक्ट में आया था. लॉज में, लीगल लॉज में ये सब आया था. ठीक है, जो कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है उसके अंडर में ये सारा लॉ आया था, जहां ग्रेचुइटी, मैटरनिटी लीव एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, पीएफ अकाउंट एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस अकाउंट एक्ट, मैच्योरिटी एंड बेनिफिट एक्ट, ये सारा कुछ लॉज बना था सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के नाम पे. अगर आप भी ये सब ऑनलाइन में देखिएगा सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्ट, तो देखिए ये सारा धाराएं है. इस धारा के बेसिस पे आप केस कर सकते हो कंपनी के ऊपर. अगर कंपनी आपके साथ कोई भी इलीगल, इनडिस्प्यूट और आपके साथ आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, then you can file a suit against the company. Next slide, ma'am. Hello, next slide. Major areas to covered by labor laws. और कौन कौन से एरियाज है जो कि हम कवर करना चाहते हैं, करता है? इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. नॉन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स वो लेडीज है उसको सहूलियत मिल रहा है, उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहा है. वो अपर कास्ट का है उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहा है. मैं लोअर कास्ट का हूं इसलिए मुझे कम सुविधाएं मिल रहा है. ये जो इनडिस्क्रिमिनेशन है ये भी बंद होना चाहिए. ये भी गवर्नमेंट के लॉज में लीगल एक्ट माना जाता है, इलीगल एक्ट माना जाता है. और अगर कंपनीज में आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेशंस दैट हैपेंस टू यू. वो रईस बाप की बेटी है या बेटा है इसलिए उसे अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कंपनीज में, और हम गरीब घर से है हमारा ट्रीटमेंट अलग हो रहा है. अगर ये इनडिस्क्रिमिनेशंस आपको लग रहा है हो रहा है, तुरंत आप इस पे कार्रवाई कीजिए. आपको इसका रिजल्ट, इसका नमूना आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा. कौन कौन से एक्ट में आता है देखो? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, पोस्ट एक्ट 2013. पोस्ट एक्ट मींस द एक्ट जहां पर फीमेल्स को, वुमेन को इल ट्रीट्स किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट एक्ट 2013. फाइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2006 में बना था ये कानून कि आप जो डिसेबिलिटीज है आप उसको लेके उनका मजाक उड़ाना, उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, ये सारा जो है आपको फिर 2006 रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप अंतर्गत आपके ऊपर धाराएं लग सकता है अगर आप इस तरह का बिहेव एम्प्लॉइज के साथ करते हो तो. हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर. व्हाट इज दिस? मैंडेट्स हाइजीनिक कंडीशंस, accident preventions and welfare facilities. Okay, mandate hygienic conditions, accident preventions और welfare facilities. ये सारा कुछ भी है. अगर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो जाता है, ऑन ड्यूटी में आप किसी का लाइफ चला जाता है, ऑन ड्यूटीज में आप अगर कुछ केसेस बनता है तो इसके अंतर्गत आप फाइल सूट कर सकते हो, केस कर सकते हो. क्या लॉज है? फैक्ट्री एक्ट 1948, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 में और ज्यादा इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया था, और ज्यादा इसको रिफाइंड किया गया था. क्यों? उस वक्त कोरोना आया था.
तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज है जो काम करते करते एक्सपायर हो चुके हैं, निकल लिए थे, टिकट कट था उनका, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को दोबारा इस चीज को रिफाइन फ्रेश करके इसको लॉज में लाया गया, अंतर्भुक्त करवाया गया, लॉज, नए लॉज तैयार किए गए थे। ठीक है, ऐसा लॉ बना था। जो एम्प्लॉइज बाहर से आते थे काम करके, वो भी लाइफ लॉस हो गया था, तो कंपनी उसको कोई कंपनसेशन नहीं दे रहा था, है ना, कंपनसेशन नहीं दे रहा था। या कंपनी सोचो वर्कर्स को बुलाया, अब वर्कर जैसे आ रहा था, आते आते उसके रास्ते में ही मौत हो गई, तो फिर ये सारा कुछ जो है कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट इनका जो लीगल प्रोसीड्यूर है, लीगल एक्शंस है, आपको आप इस चीज में अंतर्गत हराए आप डाल के केस कर सकते हो, अगर कंपनी आपका बात नहीं सुन रहा है तो। सो दीज आर द मेजर एरियाज कवर्ड बाय द लेबर लॉज। अब तक जो मैंने पढ़ा है, कोई डाउट है? ये सब क्या है बोले तो अभिजीत, ये सब ना थोड़ा सा बाई हार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये समझाने वाली कोई चीज नहीं है। देखिए पढ़ के आपको बहुत इजी लगेगा। यू नीड टू बाई हार्ट, आपको लॉस बाई हार्ट करना पड़ेगा। क्यों? अगर क्वेश्चंस मानो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है, इफ यू आर गेटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन व्हाट यू हैव टू राइट इट डाउन। व्हाट इज फैक्ट्रीज एक्ट, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो आपको लिखना पड़ेगा फैक्ट्रीज एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। मतलब वो एक्ट हुआ था। 2020 में कौन सा एक्ट बना था? 2020 में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बना था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकता है, आपको इस तरह से इसका आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड मैम। यस सर। की लेजिस्लेशन इन इंडिया, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखो अब यहां पर ना शॉर्ट सिंपल प्रिसाइज दिया हुआ है, वहां तो मैंने बहुत इलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन किया है, यहां शॉर्ट एंड सिंपल में दिया है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसमें क्या हुआ था? रेगुलेट वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कब बना था? 1947 में। कौन देखता है इस चीज को? गवर्न इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, क्या है इसमें? गवर्न इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसा है, इसको देखने के लिए एक्ट 1947 आपको देखना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट, ये कब बना था? 1948 को। इसमें क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? इंश्योर फेयर रेम्युनरेशन। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इसका क्या था? कंट्रोल्स टाइमली पेमेंट। 1936 में बना था, इसका क्या कंडीशन है? कंट्रोल टाइमली पेमेंट्स। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसका क्या कंडीशन है? रिकॉग्नाइजेस कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स। ठीक है, ये बना था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये रिकॉग्नाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स, ये 1926 को बना था। तो ये आपको अगर उतना याद नहीं है तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहां पर शॉर्ट सिंपल है, आप इस चीज को पढ़िएगा, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन देखिए, ये भी छोटा छोटा है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को बना था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1952 को बना था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में, ग्रेचुटी एक्ट 1972, इंश्योर वेलफेयर एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स। ये सब किस लिए बनाया था? टू इंश्योर वेलफेयर एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर वर्कर। हमें हर एक एम्प्लॉइज का फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एक्ट बना था। 1948, 1952, 1961, 1972। आप एक चीज गौर कीजिएगा अभिजीत, ये जितने भी एक्ट मैंने पढ़ा है, मैक्सिमम देश जब आजाद हुआ आफ्टर 1947, जब आजाद हुआ था, उसके बाद ये सारा अमेंडमेंट्स, ये सारा एक्ट इंप्लीमेंट्स हुआ था, ये नए सिरे से ये पूरा बना था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इक्वालिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। अब इक्वालिटी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ में कौन कौन सा लॉ आता है? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये 2013 में बना था। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में बना था। क्यों बना था? प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी। ओके, इसलिए ये
इक्वालिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बना। नेक्स्ट स्लाइड मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रेमवर्क, ये क्या है? इनकरेज कलेक्टिव बार्गेनिंग्स, प्रोवाइड फॉर कोलिएशंस, arbitrations and adjudication, balance interest of management and labors. These are the industrial relationship framework. जैसे सेकंड वाला पॉइंट में आ जाओ, provide for conciliations. What is the meaning of conciliations? Conciliations means to collide. Provide conciliations means collide with other companies. बहुत सारे कंपनीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करके एक ग्रुप, एक यूनिट बन के काम करते हैं। ये सारा इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। आर्टिब्रेशंस, व्हाट इज द मीनिंग आर्टिब्रेशंस? आर्टिब्रेशंस मतलब कंटिन्यूटी। आर्टिब्रेशंस मतलब आर्बिट्रेरी से आता है आर्टिब्रेशंस, दैट इज मींस कंटिन्यूएशंस, सही तरीके से काम करना, कंटिन्यू काम करना। एंड adjunction, what is the meaning of adjunctions? Adjunctions means to adjust, maintain equal law discipline within the companies, among the employer, among the employees and also with the other companies. ठीक है? Balance interest of management and labor, always try to maintain the interest of a management and labor. Labor और management के बीच का जो रिलेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ज्यादा झुकाव मैनेजमेंट की तरफ हो, आपका कम झुकाव लेबर की तरफ हो, नहीं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसलिए आपका जो स्टैंड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। दीज आर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट स्लाइड। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई राइट्स क्या क्या है? एम्प्लॉयर राइट्स क्या है? हायर, सुपरवाइज, डिसमिस एम्प्लॉय विथ लीगल लिमिट्स। देखो ब्रैकेट किया है, आप अगर किसी एम्प्लॉयज को डिसमिस करना चाहते हो तो वो लीगल के अंदर करना पड़ेगा। यू हैव टू डू विद द लीगल लिमिट्स, विद लीगल प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय राइट, वो क्या क्या होता है? फेयर ट्रीटमेंट, वेजेस, सेफ कंडीशंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर डिसमिसल। जो पहले बताया था वो यहां पर शॉर्ट सिंपल करके बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड जुडिशियरीज, role of government and judiciary. What is this? Government frame and enforce law. Labor courts with tribunals resolve dispute. Next one is judiciary ensure constitutional right are upheld. These are the role of government and judiciary. Government का क्या रोल है? Judiciary मतलब according to court, Supreme Court verdict, according to lower court verdict, labor court verdict, उसका क्या जुडिशियरी प्रोसीड्यूर है? पहला है गवर्नमेंट फ्रेम्स एंड एनफोर्स लॉ। गवर्नमेंट क्या करता है? लॉज और फ्रेम, लॉज को फ्रेम करता है। लेबर कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स रिजॉल्व द डिस्प्यूट। लेबर कोर्ट का काम क्या है और ट्राइब्यूनल कोर्ट का क्या काम है? मतलब ये दोनों जो कोर्ट है ना, ये लोअर कोर्ट्स है, इनका काम है जो भी डिस्प्यूट आता है उनको रिजॉल्व करना। और जुडिशियरी जो सबसे मेन है, इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर अपहेल्ड। जो जुडिशियरी सिस्टम है मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अपहेल्ड करना, ऊपर रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल्स का मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसको कोई दबा के ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए कि कोई लॉ को मतलब थंब फिंगर दिखा के आगे बढ़ जा रहा है। इसीलिए जुडिशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कुछ भी काम जस्टिस और जुडिशियल के बाहर नहीं हो सकता, सब उनके दायरे, उनके अंतर्गत ही होना पड़ेगा। दिस इज द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट एंड जुडिशियल। नेक्स्ट स्लाइड। चैलेंजेस क्या क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द वेलफेयर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीड्यूर, ये दूसरा चैलेंज है। नॉन कंप्लायंस बाय स्मॉलर एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल बिजनेस है वो नॉन कंप्लायंस है। नीड फॉर लेबर लॉ रिफॉर्म एंड सिंप्लिफिकेशंस, इतना करने के बावजूद भी अभी भी ये सवाल है कि लेबर लॉ को और थोड़ा रिफाइन किया जाए और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया जाए। दीज आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
रिसेंट डेवलपमेंट, अरे ये तो है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने की कुछ नहीं है। कोड ऑफ वेजेस 2019, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में बना था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड आपको पता है पहले भी पढ़ा था, 2020 में बना था। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 बना था। इनका एम क्या है? टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज लेबर रेगुलेशंस, लेबर रेगुलेशंस को और मॉडर्नाइजेशन करना और सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो देखो कोरोना के बाद ये 3 नए रूल्स बने थे, इंक्लूड हुआ था क्या? कोड एंड सोशल सिक्योरिटी, और ज्यादा से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। इंडस्ट्रियल का जो रिलेशंस कोड है वो भी इंप्रूवमेंट हुआ था। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, उसका भी इंप्रूवमेंट करना पड़ा था। These are the recent development of labor codes. Next slide. Conclusions. Here is the conclusion. Legal framework ensure justice and harmony in the workplace. तो legal framework काम क्या है? Justice और harmony, ये दोनों वर्कप्लेस में होना चाहिए। HR must stay updated with involving laws. HR का जो भी पढ़ाई करते हैं आप लोग, जो इन फ्यूचर HR अगर बनोगे तो आपको ये सब लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस लॉज। ठीक है, क्योंकि जब आप काम कीजिएगा तब आपको ये सब लॉज की जरूरतें पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग लीगल कंप्लायंस, बेटर ह्यूमन रिलेशंस। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका लीगल प्रोसीजर्स रहेगा उतना ही बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप आप बिल्ड कर पाओ। क्यों? बिकॉज एक डर रहेगा कि अगर मैं कुछ इलीगल एक्सप्लॉइटेशन, अनफेयरनेस अगर किसी के साथ मैं करता हूं, देन देयर इज कोर्ट, देयर इज अ लॉ, फिर मुझे परेशानी हो सकता है। इसीलिए बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप्स रखने के लिए आपको लीगल कंप्लायंस होना जरूरी है। और कुछ है मैम? तो हियर वी कम्स टू द एंड ऑफ दिस लीगल एंड फ्रेमवर्क। बहुत सिंपल था, बहुत सुंदर था, आपको सिर्फ यहां पर याद करना पड़ेगा। यू हैव टू मेमोराइज एंड रिमेंबर